Hi guys, this is again Prasunta Mehtani of Easy Learning Classes, bringing you all my thoughts and my vision, and a very good day from Unacademy as well as me. Hope you are having a lovely day. A big round of applause to Unacademy for bringing all of us together over here on this platform to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. So today we go with the first thought or the first paragraph. I would like to say, no need to ape the Westerners, or as the Lord has blessed all of us with a cerebral brain. This thought really occurred to me. We all have an intelligent cerebral brain that really works, a very thought-provoking brain. Age, wage, and lineage should never be a deterrent to celebrations and revelry. When we get hostile or enforce vindictive exile on our very own who are now old and feeble, they are bound to behave senile. Let's be less deceptive or perceptive and be more amiable as well as receptive for our happiness to be more excessive or successive. An ebullient life awaits us all who believe in the logic of the more the merrier rather than two's company and three's crowd, cause this only leads to loneliness and goriness beyond doubt. For if we don't stay Indianized and believe in family values and orientations, it will be totally our loss, as we won't enjoy the privilege of immunization against loneliness, fears and tears. Remember, we are Indians who hate isolations but love nearness and dearness. So we should all the more work only towards consolidations, that is amalgamations, that is being together. And now once again, for all my Hindi listeners, let me interpret it and make it simpler. So you all understood the total essence of this poem, phrase, whatever you all call it. No need to ape the Westerners. We can't blindly ape foreigners or Westerners. We have to, हम सबको, as the Lord has blessed us with cerebral brains. Cerebral means intelligent, sharp, shrewd, smart brains. भगवान ने हमको बहुत अच्छी अक्ल से नवाजा है. Age, wage and lineage should never be a deterrent to celebrations and revelry. उम्र, पैसा, हमारी तनख्वाह या lineage, हम किस तबके को, हम किस उसको बिलोंग करते हैं, वो डिटरेंट नहीं. वो आपके इस ख्याल से बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या खुशियाँ मनानी चाहिए. व्हेन वी गेट हॉस्टाइल, हम जब रूड होते हैं, मारपीट, बैक आंसर करते हैं, वी एनफोर्स विंडिक्टिव एग्जाइल. हम अपने बड़े बुजुर्गों, हम अपने से जो वीकर सेक्शन है उनको फुटा देते हैं, एग्जाइल में डाल देते हैं, उनको एब्सकॉन्ड करा देते हैं, उनको बेदखल कर देते हैं. और हम उन पर ज़बरदस्ती ये एग्जाइल थोपते हैं अपनों पर, जो बूढ़े हो गए हैं, जो कमज़ोर हैं एंड अब बाउंड. तो वो जब बूढ़े लोग खटखट करते हैं तो उसको बोलते हैं ही इज़ बिकम सिनाइल, द ओल्ड मैन हैज़ बिकम सिनाइल, मतलब वो बहुत खटखट होता है. तो उनको खटखट होएगा ही. लेट्स बी लेस डिसेप्टिव. हमें कुछ अपने आप से कम ठगी करनी चाहिए और परसेप्टिव, कि हम परसेप्टिव होएं कि अभी ये बूढ़े हो गए, अभी ये वीक हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अभी इनका कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बी मोर अमिएबल. अमिएबल मतलब फ्रेंडली, अग्रीएबल, ज़्यादा मिलनसार, ज़्यादा प्यार वाले, और रिसेप्टिव, उनको प्यार से रिसीव करें. फॉर आवर हैप्पीनेस इज़ टू बी, हम पहले विश्वास करते जितना ज़्यादा लोग उतना मज़ा. तो एक्सेसिव जितने रहेंगे उतने सक्सीड भी करेंगे. An ebullient life. Ebullient means alacritic, enthusiasm, lively, zinda dili. Life awaits us all who believe in the logic of, जो इस बात में विश्वास रखते हैं, the more the merrier, जितने ज़्यादा उतना मज़ा. And rather two's company and three's crowd, जो ये बिलीव करते हैं कि दो काफ़ी हैं, तीन लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. कॉज दिस ओनली लीड्स, ये अगर हम भावना रखेंगे तो हम ही अकेले पड़ जाएंगे, हम ही, और वो अकेलापन काटने को आ जाएगा, वो बिना डाउट के. क्योंकि फॉर इफ़ वी डोंट स्टे इंडियनाइज, हमारी
इंडियनाइज संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है, जिसमें फैमिली वैल्यूज़ हैं, जिसमें हम जॉइंट फैमिलीज़ या फैमिली ओरिएंटेड होता है। हम कोई भी सेलिब्रेशन करें तो अकेले तो मज़ा ही नहीं आता, सब साथ में होंगे तो मज़ा आता है। इट विल बी टोटली आवर लॉस, ये हमारी बर्बादी, हमारी हानि का कारण हो जाएगी कि हमें प्रिविलेज जो मिलता है, टुगेदरनेस से एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नहीं मिलेंगे। इम्यूनाइजेशन होती है, हमें कभी डर नहीं लगता, कभी अकेलापन नहीं महसूस होता, और कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो 10 लोग आ जाते हैं, उन सब से हम वंचित रह जाएंगे इस स्टूपिड अकेलेपन की वजह से। रिमेंबर, वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अकेलापन भाता ही नहीं है, बट love nearness and dearness, so we should all work more only towards consolidations, मतलब एकता, मिलनसार में। हम उस बनावट के हैं, हम वैसे हैं ही नहीं जो अकेलेपन को enjoy करें। So the next quote is, no gains can be planned, no predicament can be scanned, no catastrophes can be banned, but good and salutary feelings can be fanned. Collective harmony and world peace missions can also be manned. Now it's time that my efforts of connecting and bonding with y'all be genuinely flanked, as your good wishes and blessings are some things that I truly bank upon, guys. Thank you so much. No gains can be planned. हम अपने प्रॉफिट्स को प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. No predicament can be, सी प्रिडिकमेंट, क्वांडरी, डायलेमा, तकलीफ, हम उसका कोई स्कैनिंग नहीं कर सकते, उसको खोल के देखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना. नो कैटेस्ट्रोफ्स मतलब जो डिज़ास्टर हुआ, डायलेमा हुआ, हानि हुई, उसको हम बैन नहीं कर सकते हैं, तो वो बैन नहीं हो सकते हैं. बट कलेक्टिव एंड सैल्यूटरी फीलिंग्स कैन बी फैंड. जो हमारे अंदर एक कलेक्टिव फीलिंग्स है कि सब लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, ये हमारे अंदर जितनी ज़्यादा उतनी मात्रा में हम उनको ला सकते हैं. कलेक्टिव हार्मनी मतलब हम सब एकता में विश्वास रखें, दुनिया पूरी पीसफुल मिशंस में रहे, दुनिया में पूरी, ये सब हम मैन कर सकते हैं. हम सबको ऑर्गेनाइज करना, मैन करना मतलब इस सब की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं. नाउ इट्स टाइम, अभी वक्त आ गया है कि आपको मेरे एफर्ट्स टू कनेक्ट एंड बॉन्ड, हम सबका अनअकैडमी का, मेरा आपका जो नाता है, उसे आप मेरे एफर्ट्स टू बी फ्लैंक मीन्स टू बी अपलॉडेड, टू बी थैंक्ड. गॉट इट? आई एम अ नार्सिसिस्ट. As your good wishes and blessings are something that I truly bank upon, guys. आपके आशीर्वाद और आपके सहमति से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी या मैं कदम भी एक आगे रख पाऊंगी, इस पर मुझे पूरा भरोसा है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है अपने से ज़्यादा. Thank you so much. The next and the last one is, keep doing your good work even if absurdity smirks, banality irks, and moreover there seems no evident perks to add to your agony. More ludicrous comments may seem to make life go berserk. Don't worry when human beings don't appreciate, repudiate or berate your work. It gets slated in the Lord's file, who is all altruistic and doesn't believe in frugality, but will always give you enough to adapt to grandiosity. However, dear, you and I jolly well know for good things to happen it takes a while, so now let us rest for a while. Got it? तो ये अभी हिंदी में इसका मैं संक्षेप में बताऊंगी. कीप डूइंग योर गुड वर्क, अपना अच्छा काम चालू रखे. अगर आपको लगता है ये एब्सर्ड है, कुछ होने वाला नहीं है, एब्सर्डिटी आपकी और कनिंगली देखती है, एब्सर्डिटी आपको मुंह बना के देखती है, आपको लगता है बेनिलिटी कि ये रोज़ का रूटीन काम बहुत ही तंग हो गए हैं, अर्क्स, एंड मोर ओवर लगता है कि ज़िंदगी में अभी कोई पर्क मिलेगा नहीं, कोई इंसेंटिव मिलेगा नहीं, कुछ अच्छा मिलने नहीं वाला है. टू ऐड टू आवर एगनी, इस जले पे और नमक मिलाने के लिए. मोर ल्यूड्रिशियस कमेंट्स, ल्यूड्रिशियस वेरी हार्मफुल, वेरी बैड, बहुत ही मजाक कराने वाली है आपका.
may seem to make your life go berserk. berserk मतलब आपका दिमाग चकरा जाए, इतने लोग आपके बारे में बुरी बुरी बात करें. डोंट वरी व्हेन ह्यूमन बींग्स डोंट अप्रिशिएट, जब इंसान लोग आपकी कदर नहीं करते. रेप्यूडिएट मीन्स क्रिटिसाइज करें, बहुत ही बुरा भला कहें. और बिरेट आपके काम को भी बुरा भला कहें. इट गेट्स लेटेड इन द लॉर्ड्स फाइल. भगवान की किताब में सब आता है. हु इज, भगवान सर्वोपरि बहुत दयालु होते हैं. एल्ट्रुइस्टिक मीन्स दया का भंडार. एंड डजंट बिलीव इन फ्रूगैलिटी, वो कंजूसी में बिलीव ही नहीं करते. फ्रूगिल तो वो हैं ही नहीं भगवान. ही इज omnipotent, omnipresent and omniscient, but will always give you enough. तो आपको इतना देंगे कि आपकी उम्र ग्रैंडियोसिटी में कट जाएगी. ग्रैंडियोसिटी मतलब लग्जरी, मतलब आलीशानी में. However, dear you and I jolly well know, हमें पता है अच्छी चीज़ मिलने में वक्त लगता है, तो हम इंतज़ार करेंगे, आराम करेंगे. अब ये थे मेरे ख्याल, मेरे विचार आपके लिए, आपकी खुशहाली के लिए और मेरे भी. They say positive thinking makes a person positive, so this is on behalf of the world, for the world, and this is a big thank you from my side for my efforts being appreciated. Thank you so much guys, thanks a lot.